हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। ये पार्ट 4 है मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ का और इसमें हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री इंटरनेशनल स्ट्रगल जो है इंटरनेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो सेशन है टेस्ट नंबर 4, तो उसके क्वेश्चंस हम करेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि आपका स्कोर क्या रहा। In which of the following movements Vande Mataram was adopted as a slogan for agitation? Quit India Movement 1942, Non-Cooperation Movement 1922, Partition of Bengal 1905, Revolt of 1857. तो किस मूवमेंट में इन चार मूवमेंट्स में से किस मूवमेंट में वंदे मातरम को जो है एज अ स्लोगन एजिटेशन में यूज किया गया? सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. वंदे मातरम वाज adopted as a slogan for agitation during partition of Bengal in 1905. The slogan of Vande Mataram was first adopted during Swadeshi movement that was a part of Indian independence movement. This movement is also referred as anti-Bengal partition. असल में होगा ये एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट. ठीक है, शाबाश. सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर. Question number 2. The achievement of the non-cooperation movement of 1921 was that it stopped the injustice done to the Khilafat. India obtained some political rights. The Hindus and Muslims came closer in political pursuit. It avenged the Punjab atrocities. क्या लगता है आपको सही आंसर है? And yes, the right answer is option B. So let me check it. So I thought the answer would be here the Hindus and Muslims came closer in political pursuit, but yes they came closer. But यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगह पे चेक किया, यहाँ पे दिखाया गया है ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है, क्योंकि इंडियंस जो थे ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको पता है सारे लोग निकले थे और उनको अपने हक का पता चला और उनका जो फेयर था ना वो खत्म हो गया. तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखे द अचीवमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921 वाज दैट इंडिया obtained some political rights. The non-cooperation campaign was superheaded by Mahatma Gandhi. In March 1920, he published a manifesto outlining the non-violent non-cooperation movement's belief. The non-cooperation movement of 1921 reached a watershed moment when Indians gained some political rights. It was a true mass movement with tens of thousands of Indians taking part in peaceful protests against the government. Moving forward, which of the following took the burning of the foreign clothes during the non-cooperation movement as insensate waste? किसने बोला ये कि जो हम फॉरेन क्लोथ्स को जलाते थे ना, इट इज इनसेंसेट वेस्ट? लॉर्ड रीडिंग, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली. एंड Option C. Rabindranath Tagore took the burning of foreign clothes during the non-cooperation movement as insensate waste. During the non-cooperation movement, Rabindranath Tagore coined the phrase insensate waste to describe the burning of foreign clothes. ठीक है, तो ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. चले. Who was the founder of All India Harijan Sangh in 1932? Jagjeevan Ram, Mohandas Karamchand Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, Vinoba Bhave. So the right answer is option B. Mohandas Karamchand Gandhi was the founder of All India Harijan Sangh in 1932. Harijan Seva Sangh is a non-profit organization founded by Mahatma Gandhi in 1932 to eradicate untouchability in India, working for Harijan or Dalit people and upliftment of the depressed class of India. सो देर की जो शेड्यूल कास्ट होते थे इनको हम दलित्स बोलते थे तब, तो उनको अपलिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही थी. During the Indian freedom struggle, the Simon Commission was appointed to. Simon Commission क्यों अपॉइंट किया गया था? Explore the possibility of granting dominant states to India. Review the provisions of Rollout Act. Determine the relations of the British government with the Indian states. Examine the working of the reforms of 1919. बताइए क्यों अपॉइंट किया गया था साइमन कमीशन? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. During Indian freedom struggle, the Simon Commission was appointed to examine the working of reforms of 1919. जो 1919 एक्ट लाया था उसकी वर्किंग को देखना कि वो कैसा चल रहा है. In 1927, the British government appointed Simon Commission 2 years ahead of schedule to report on India's constitutional progress. ठीक है, बेसिकली ये बनना था 1930 में, उससे पहले ही 1929 में बनना था, तो ये दो साल पहले ही बनाया. For introducing constitutional reforms as promised, the commission was strongly opposed by many Indians. मुझे लगता है तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस ने इस कमीशन को, साइमन कमीशन को अपोज किया. ठीक है. Who started the बूदन मूवमेंट? बूदन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? स्वामी विवेकानंदा, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी,
आचार्य विनोबा भाव। सो भूदान मूवमेंट जो है ऑप्शन डी। भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी's disciple विनोबा भाव in April 1951, born spontaneously at an evening meeting in an Andhra Pradesh village. The movement saw landowners gifting land to the landless. ठीक है, आंध्र प्रदेश में विलेज, एक विलेज में ये स्टार्ट किया गया आचार्य विनोबा भाव ने। Got it? Okay. Which of the following was continuous movement based on the philosophy of Gandhiji and not a specific movement? Swadeshi movement, Quit India movement, civil disobedience movement, non-cooperation movement. तो गांधी जी की कॉल पे, गांधी जी की फिलॉसफी पे एक कंटिन्यूस मूवमेंट क्या चल रही थी? ये पर्टिकुलर कोई मूवमेंट नहीं, मतलब जो कंटिन्यूस ही चल रही थी उनके जो है आइडियोलॉजी पे। सो ऑप्शन ए, Swadeshi movement was continuous movement based on philosophy of Gandhiji. Swadeshi movement was a self-sufficiency. गांधी जी बोलता है हमें self sufficient होना चाहिए. Movement that was part of Indian independence movement and contributed to the development of Indian nationalism. ठीक है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, we should be self-sufficient. Indian National Congress celebrated the Independence Day for the first time on इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया? 10 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1930. And the right answer is option B. The Indian National Congress celebrated the Independence Day for the first time on 26 January 1930. A public declaration was made on 26 January 1930, a day which the Congress Party urged Indians to celebrate as Independence Day. तो इसीलिए हमारा जो 26 जनवरी है वो फिर रिपब्लिक डे मनाया जाता है। Who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the Council of the Secretary of State of India? इनमें से किसने अपने नाइटहुड का टाइटल रिजेक्ट किया और रिफ्यूज़ किया कि मुझे कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है काउंसिल में जगह नहीं चाहिए? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, MG रनाड़ा, बाल गंगाधर तिलक। देखो बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, और इनके दो अखबार थे, मराठा एंड केसरी। MG रनाड़ा ने एजुकेशन और खासकर गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गोपाल कृष्ण गोखले को फ्रंटियर गांधी माना जाता था और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में लॉन्च किया था। दिस वर द एडिशनल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने रिजेक्ट किया नाइटहुड एंड रिफ्यूज किया टू एक्सेप्ट अ पोजीशन इन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। गोपाल कृष्ण गोखले वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट हु प्रोवाइडेड exemplary leadership to India's freedom movement. And knighthood is a title that is given to a man by British king or queen for his achievement or his service to the country. नाइटहुड दिया जाता था ब्रिटिश किंग और क्वीन की तरफ से जो कोई अच्छी सर्विस देता कंट्री के लिए। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में बनाई थी। Who advocated the policy of abolishing princely states in free India? किसने बोला था कि princely states नहीं होनी चाहिए फ्री इंडिया में? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचार्य, महात्मा गांधी। एंड सी राजागोपालाचार्य, popularly known as सी राजागोपालाचारी, advocated the policy of abolishing princely states in free India. कुछ जगहों पे इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू भी दिखा के, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैज मेंशन्ड सी राजागोपालाचार्य एज इट इज आंसर। Who among the following were considered constitutionalists within the Indian National Congress? Satyamurthy and K.M. Munshi, Subhash Chandra Bose and Maulana, Sarojini Naidu and Annie Besant, Jawaharlal Nehru and J.B. Kripalani. किनको बोला जाता था constitutionalist? And option A, Satyamurthy and K.M. Munshi considered constitutionalists within the Indian National Congress. Okay. मोपला रेबिलियन ऑफ 1921 टुक प्लेस इन, कहाँ पे मोपला रेबिलियन हुआ? क्या ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ, केरल में हुआ, कश्मीर में हुआ, आसाम में हुआ? मोपला रेबिलियन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। एंड द आंसर इज बी, केरल में हुआ था। मोपला रेबिलियन ऑफ 1921 टुक प्लेस इन केरल। मोपला रेबिलियन आल्सो नोन एज मोपला रॉयट्स ऑफ 1921 वाज द कल्मिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ रॉयट्स बाय मापीला मुस्लिम्स ऑफ केरला। ये वहाँ के मुस्लिम्स थे, मापीला मुस्लिम्स, इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द हिंदू लैंडलॉर्ड्स इन मलाबार नॉर्दर्न केरल। तो मलाबार रीजन में, मलाबार कोस्टल रीजन में ये हुआ था। वहाँ पे मुस्लिम्स थे, केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, मापीला मुस्लिम्स थे, और वहाँ पे हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, तो उनके खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये उठाया था उन्होंने। Who among the following Gandhian followers was a teacher by profession? राजेंद्र प्रसाद, JP कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, AN सिन्हा। इनमें से कौन सा जो गांधी का फॉलोअर था बट ये प्रोफेशन से टीचर था?
And answer is option B. J.B. Kripalani was a teacher by profession. Kripalani worked as a school teacher before joining the freedom movement following Gandhi's return from South Africa. Got it? In 1943, Subhash Chandra Bose proclaimed the formation of Provisional Government of Independent India, Azad Hind, in कहाँ पे? सिंगापुर, टोक्यो, रंगून, वीनिया. 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि हमने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, आज़ाद हिंद जिसका नाम रखा, कहाँ पे इसने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए. 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रोक्लेम किया कि हमने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सिंगापुर में ऑन 20, याद रख लेना 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन सिंगापुर बाई इंडियंस इन एग्जाइल हेडेड बाई सुभाष चंद्र बोस. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड आज़ाद हिंद और फ्री इंडिया. ठीक है, शाबाश. Which one of the following was a journal brought by Abul Kalam Azad? In Abul Kalam Azad ने कौन सा जर्नल लाया था? कॉमरेड, अल हिलाल, जमींदार, इंडियन सोशोलॉजिस्ट. इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामा प्रसाद वर्मा ने लाया था. ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा लाया था? Al Hilal was a journal brought out by Abul Kalam Azad. Al Hilal was a newspaper established by Indian leader Maulana Abul Kalam Azad and used as a medium for criticism of the British Raj in India. तो इसी के थ्रू ये ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज कर रहा था. And the paper was notable for this criticism of the British Raj in India and its extortion to Indian Muslims to join the growing Indian independence movement. Okay. In the interim government formed in the year of 1946, जो 1946 में इंडिया में इंटरम गवर्नमेंट बनाई गई, which who of the following held the portfolio of defense? डिफेंस का पोर्टफोलियो किसने लिया? जगजीवन राम, बालदेव सिंह, आसिफ अली, वल्लभ भाई पटेल. सो डिफेंस वाला पोर्टफोलियो किसको दिया गया? बलदेव सिंह को दिया गया. बलदेव सिंह was appointed as a defense minister in the interim government of 1946. Got it? शाबाश. In 1917 at Champaran, the government forced farmers to undertake land sealing, opium cultivation, hollow cultivation, indigo cultivation. चंपारण सत्याग्रह के बारे में हमने पढ़ा था, 1917 में हुआ था. और वहाँ पे एक फार्मर्स के साथ कौन सा इशू था, उनको क्या बोला जाता था? ऑप्शन डी. 1917 में चंपारण पे गवर्नमेंट ने फोर्स किया था फार्मर्स को टू अंडरटेक द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. Indigo for British happened to be a very profitable cash crop that was used for making dye. Indigo dye के लिए यूज किया जाता था, डाई कपड़ों को डाई देने के लिए. तो उसमें बहुत प्रॉफिट भी मिलता था ब्रिटिशर्स को, तो वो इंडियंस को फोर्स करे थे इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए. From where did Mahatma Gandhi started his historic Dandi march? गांधी ने कहाँ से हिस्टोरिक डांडी मार्च स्टार्ट किया? सबरमती आश्रम, चोरी चौरा, डांडी, चंपारण. एंड ऑप्शन ए. ऑन 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया डांडी मार्च. कहाँ से? सबरमती आश्रम से. दिस वॉज अ नियरली 385 किलोमीटर मार्च फ्रॉम हिज सबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी, अ कोस्टल टाउन इन गुजरात. गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन 1919 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफ. किसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की 1919 में? एनएक्टमेंट ऑफ रोलआउट एक्ट, चंपारण रॉन्ग, साइमन कमीशन, colonial exploitation of India. So yes, the right answer is option A. Gandhi started Satyagraha movement in 1919 in protest against the enactment of Rollout Act. The act gave the government the power to imprison any person suspected of territorial activities for a maximum period of 2 years without trial. The Prime Minister of Britain at the time of India's independence was. The Prime Minister of Britain at the time of India's independence was. कौन था प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली? रामसे मैकडोनाल्ड, विंसेंट चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली. And the right answer is the Prime Minister of Britain at the time of India's independence was Clement Attlee. He was the leader of Labour Party from 1935 to 1955 and served as Prime Minister of United Kingdom from 1945 to 51. ठीक है, शाबाश. Moving forward. All the 3 round table conferences were held in Manchester, Calcutta, Bombay, London.
कहाँ पे हुई थी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? ऑप्शन डी, all the three round table conferences were held in London. The three round table conferences of 1930 to 1932 were a series of peace conferences organized by British government and Indian political personalities to discuss constitutional reforms in India. ठीक है? The Quit India movement started at Lahore on July 7, 1942, Wardha on August 7, 1942, Mumbai on 8 August 1942, Delhi on 15 August 1942. Quit India movement कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? Quit India movement हुई थी स्टार्ट मुंबई में 8 अगस्त को 1942 में। मोहनदास करमचंद गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, और उन्होंने एक उस टाइम पे डायलॉग दिया था, एक स्लोगन दिया था, डू और डाई का। गॉट इट? The civil disobedience movement was led in the northwest frontier province by northwest frontier province में, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया का था, जो आजकल अफगानिस्तान है, पाकिस्तान साइड से है, वहाँ पे किसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड की थी? खान अब्दुल गफार खान, डॉक्टर एम ए अंसारी, सेवा सिंह तिकरीवाला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। खान अब्दुल गफार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड की थी। ही वॉज द मोस्ट लॉयल फॉलोअर ऑफ गांधी एंड वॉज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। उसने पख्तून एक, या ही बिगेन अ सत्याग्रह एट पेशावर ऑन 23 अप्रैल 1930। उसने एक वीकली जो है जर्नल स्टार्ट किया था, पख्तून, और इसने उस एक फोर्स बनाया था वहाँ पे अपने जो यंग पीपल का, उनको हम खुदाई खिदमतगार्स बोलते थे, या रेड शर्ट्स, क्योंकि वो रेड शर्ट्स पहनते थे, उनको खुदाई खिदमतगार्स भी बोला जाता था। तो सॉरी, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। जो गोपाल कृष्ण गोखले है ना, उनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी बोला जाता है। ठीक है, शायद मैंने मत वहाँ पे बोला फ्रंटियर गांधी का। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान को बोलते हैं। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी माना जाता था। During freedom struggle, who established the Deccan Educational Society? Deccan Educational Society किसने एस्टैब्लिश की? गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रनाडे, दादाभाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Deccan Education Society is an organization that runs 43 educational establishments in Maharashtra, Pune, founded by Bal Gangadhar Tilak. दादाभाई नेहरू जी ने ये थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। दादाभाई नेहरू जी 3 टाइम्स रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। एम जी रनाडे ने बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम किया और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए काम किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी 1905 में। बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट थे, जिनके 2 अखबार थे, मराठा और केसरी। ठीक है, और इन्होंने होम रूल लीग भी चलाई थी, एनी बेसिस और इसने अलग अलग चलाई थी। ठीक है। Who among the following said, "My boy, no, you are an Indian first and then a Muslim"? मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये किसने बोला था? एंड ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना सेड, "माय बॉय, नो, यू आर एन इंडियन फर्स्ट एंड देन अ मुस्लिम"। मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ बैरिस्टर, पॉलिटिशियन एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी थे। और हाँ, कल वाले क्वेश्चन एक गलत हुआ था, मैंने ऑप्शन नीचे कमेंट्स में पिन करके रखा है। फिर फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, बेसिकली मोहम्मद अली जौहर थे उस टाइम पे, तो वो गलत हुआ है पढ़ने में। नवाब समीउल्लाह, और जो है ढाका में बनी थी 1906 में मुस्लिम लीग, तो उसका वही सही आंसर है, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करके रखा है। सो मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ बैरिस्टर, पॉलिटिशियन एंड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना सर्व्ड एज द लीडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ्रॉम 1913 until the inception of Pakistan on 14 अगस्त 1947। तो इन्होंने फिर मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। ठीक है, शाबाश। Which one of the following events was characterized by Montagu as preventive murder? अच्छा, मोटेगू ने किसको बोला, किस इवेंट को बोला प्रिवेंटिव मर्डर? शूटिंग ऑफ कर्जन विथी, शूटिंग ऑफ द महात्मा, मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग, किलिंग ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एक्टिविटीज। तो ऑप्शन जी, सी, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, उसको इन्होंने बोला कि द जलियांवाला बाग मैसेकर, आल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर, टुक प्लेस, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो डायर ने, एज्ड 75, वाज शॉट डेड एट अ जॉइंट मीटिंग ऑफ द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन एंड द सेंट्रल एशियन सोसाइटी इन लंदन में उसको फिर मारा गया ऑन 13 अप्रैल मार्च 1940 बाय एन इंडियन रेवोल्यूशनरी उधम सिंह। उधम सिंह ने एक इसको मारा था 1940 में, फिर इसको जनरल डायर को, राइट। तो मोंटेगू कंडेम्ड द डायर सिवियरिटी एंड कॉल्ड इट प्रिवेंटिव मर्डर। ठीक है,
तो मोंटेग्यू ने बोला था कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते थे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दिस सेट 5 और 4, सेट 4 है ये। तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितने सही हुए और कितने गलत हुए। बाकी लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।